Hello everyone. Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. So students, once again I'm welcoming everybody in the very second video lecture of your letter series where I'm going to explain you business letters. Students, today we are going to discuss about business letters. In the last lecture I had told you about sorry, last day we had discussed business letters. I apologize my mistake, as last day we have discussed business letters. Right now let us talk about official letters. So there's some mismanagement of pages, don't you worry about. Okay, so students, I apologize. Today we have to study about the official letters. Okay, so when we talk about official letters, okay, so students, official letters are a very distinctive type of letters where letters are written regarding the employees, to file a complaint and to apologize for something. Okay, these includes letters of complaint, making inquiries, making request and appeals. So for all these purposes, simply official letters are written. All right, let me elaborate it. Students, official letters are a very distinctive letters, and often we get in touch with this kind of letter. Okay, as it includes complaint, inquiries and request and appeals. Okay, so it need always to file these kind of letters. Often actually we all have to face the official mistreats, misbehaves and several kinds of other things. Therefore we used to write letters, we used to file a complaint, inquiries, request and appeals to or against the offices, concerned departments, offices and portfolios. All right, सो बच्चों, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफिशियल लेटर्स. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिशियल लेटर्स, तो स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि ये एम्प्लॉयज़, रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ है, किसी एम्प्लॉयज़ को के संबंध में लिखे जाते हैं. या फाइल कंप्लेंट, आप कोई कंप्लेन फाइल करते हैं. अपोलोजाइज मतलब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ठीक है, इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं कि आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, आप इंक्वायरीज़ कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट से, किसी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरह के कंसर्न्स को अपनी शो करने के लिए. ओके, दिस इज़ व्हाट द ऑफिशियल लेटर. Now students, come to the point which is very important, the format. Okay, as I told you last day, what is the format of this type of letter, as letters format almost similar to one another. Okay, जो format होता है लेटर का, वो जैसे हमने लास्ट बिजनेस लेटर्स को स्टडी किया था, तो जो फॉर्मेट हमने बिजनेस लेटर में देखा स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मेट वी हैव टू रिपीट हियर इन दिस official letters. I'm once again going to repeat this format. Okay, how you have to start it. Okay, so जब हम official इसके official letters के format की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम start करते हैं यहाँ पे लिखना, उसको हम कहते हैं senders address. Okay, senders address. then after date mention करना होता है. Okay, then after डेट, तो डेट आपको मेंशन करना होता है. देन आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, जो लेटर रिसीव कर रहा होता है, जिसको आप सेंड कर रहे हैं, उसका रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है. ओके, आफ्टर इट यू हैव ऑल्सो टू पुट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. ओके, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर के बाद आपको सॉल्यूटेशन लिखना होता है. ओके, सॉल्यूटेशंस आपको लास्ट से मैंने बताया था, डियर सर, सर, रिस्पेक्टेड सर. ओके,
सो इस तरीके से हम सर या मैडम जो भी है उस तरह से हम सॉलिटेशन उसको हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसको सल्यूट करते हैं, तो ये सॉलिटेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर जस्ट राइटिंग इट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर द मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है वो आपको यहाँ से शुरू करना होता है, बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, तो ये आपका हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, पूरा जो भी आपका कंसर्न है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके, so this is the way of writing, after writing the body of the letter you have to write the complementary closure. Okay, complementary closure आपको मेंशन करना होता है। Okay, complementary closure is also very important here after this in a same alliance, एक ही अलाइंस में लेफ्ट साइड में आपको लिखना है, ठीक है, एक ही अलाइंस में आपको ये मेंशन करना है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि हर चीज़ जो है इसी अलाइंस में लिखे जाएंगे। ओके, वेदर इट इज़ एनीथिंग इट मस्ट बी रिटन इन द सेम अलाइंस। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर भी यही होगा। एंड देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर यू हैव, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या होता है, जो आप थैंकिंग यू या थैंक यू लिखते हैं वो, या रिगार्ड्स लिखते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। आफ्टर राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर यू हैव टू सिंपली राइट द subscription and signature in the same here. Okay, there's a less of space कम है, बट आप ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के बाद इस तरह से बॉडी ऑफ द लेटर आप लिखेंगे, और बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के बाद फिर दिस इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। ओके, आफ्टर इट योर सब्सक्रिप्शन, ओके, ये सब्सक्रिप्शन एंड देन सिग्नेचर। ओके, this way complementary closure after writing body of the letter, first write the complementary closure, then after write the subscription, and then after the signature. Okay, this is what the entire procedure or the pattern or format of writing a letter. Students, hope आपको ये समझ में आया होगा। So now let's move further and see the example which we are going to study right here. Okay, so students, जो example हमने pick किया है वो ये question है, question number 16. Okay, in it the question is, you are Mahesh Mohita, president RWA. Okay, कोई society है, Govindpuri, Bangalore. The main park in your locality, which was once a model park, lies in a state of utter neglect. Okay, आज वो क्या पड़ा है, आज वो उपेक्षा का शिकार है। Okay, it has become a favorable spot for anti-social elements. असामाजिक तत्वों का एक बहुत ही अड्डा हो गया है ये क्षेत्र अब, एंड परमानेंट रेस्टिंग प्लेस फॉर स्ट्रे एनिमल्स, और जो सड़क पे रहने वाले खुले जानवर हैं उनका एकदम परमानेंट अड्डा बन गया, उनका स्टेइंग प्लेस बन गया है। ओके, राइट अ लेटर टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कमिश्नर, आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इंस्ट्रक्ट द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन एंड रिस्टोर द पार्क ऑफ इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक म्यूनसिपल कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेंगे, लेटर लिखेंगे जिसमें वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करे कि वो कोई मतलब कि प्रॉम्प्ट सटीक एक्शन ले, इसके ऊपर तेज कोई एक्शन ले, एंड रिस्टोर द पार्क और टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और पार्क को उसके पास्ट मतलब कि पहले की कंडीशन में फिर से लाया जाए। ओके, ये आपकी क्या है, एक कंप्लेन है। ओके, तो आप ऑफिशियली क्या कर रहे हैं, एक कंप्लेंट है ये, तो आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। अब हम इसकी सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ओके, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ऑफिशियल लेटर। ओके, सो राइटिंग, जो सेंडर थे वो महेश थे, सो यू वुड स्टार्ट राइटिंग विथ महेश लाइक दिस, Mahesh,
This is the sender address, Mahesh, President, RWA, Govindpuri, Bangalore. Okay. After writing it, further date October 1, 2020, लास्ट टाइम मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था. देन आफ्टर म्यूनसिपल कमिश्नर बैंगलोर, इस तरह से जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, ये रिसीवर हो गया, ये सेंडर, ये डेट. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे. सब्जेक्ट क्या है, प्लाइट ऑफ पब्लिक पार्क इन लोकेलिटी, लोकेलिटी में पब्लिक पार्क की दुर्दशा के संदर्भ में. ठीक है, ये आपने लिखा. अब फिर आगे बढ़ते हैं. फिर आपने सॉलिटेशन लिखा, सर और मैडम जो भी होंगे उनके नाम आपने एक लेटर लिखा. ठीक है, ऑब्लिक करके लिख देंगे तो दोनों को एड्रेस हो जाएगा, वेदर इट इज़ सर और मैडम. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्दर. अब इसके बॉडी ऑफ द लेटर को देख लेते हैं. दिस इज़ टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस. ओके, स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं आप, दिस इज़ टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट द कंडीशन ऑफ द पार्क इन आवर लोकेलिटी हैज़ बिकम वेरी chaotic. ओके, मीन्स आप बताएंगे कि आपके ध्यान में हम ये बात लाना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में एक पार्क है वहाँ की कंडीशंस बहुत ही बदतर हो गई है. ओके, ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन ना, एक प्राइम लोकेशन पे होने के नाते इट वाज अ प्राइम सोर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट. ये जो है हम लोगों के लिए एक प्राइम सोर्स था, मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइजिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए. बट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इट हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स. ये स्थान एंटी सोशल एलिमेंट्स का एक स्थान बन गया, मतलब कि उनका अड्डा बन गया है अराजक, मतलब कि असामाजिक तत्वों का. एंड अ परमानेंट रेस्टिंग प्लेस फॉर स्ट्रे एनिमल्स, और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उन लोगों का परमानेंट रेस्टिंग प्लेस बन गया है, छुट्टे जानवरों का. द क्लीनिनेस ऑफ द पार्क हैज़ ऑल्सो वैनिस्ड नाउ. जो पार्क की साफ़ सफाई होती थी अब वो गायब हो चुकी है. एनिमल्स डंग्स एंड गार्बेज कैन बी सीन हियर एंड देयर. पार्क में यहाँ वहाँ आपको जानवरों के गोबर और बाकी कचरे दिखाई पड़ जाएंगे. ओके, द पार्क इटसेल्फ, पार्किंग एक्चुअली है, यहाँ पार्क आप करेंगे. द पार्क इज इटसेल्फ वीपिंग एट इट्स प्लाइट. पार्क अपनी दुर्दशा पे खुद ही रो रहा है. देयरफॉर एज एन एक्टिव सिटीजन ऑफ द सोसाइटी एंड अ प्रेसिडेंट ऑफ RWA, आई एम एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न्स टू यू. ओके, आई होप फॉर अ क्विक एंड बेटर रिस्पॉन्स. इसके स्थान पे आप एक दो लाइन और ऐड कर सकते थे. आई एम होपिंग दैट the horticulture department should be instructed in the right manner so that department can do a quick action against the mismanagement of the park. फिर उसके बाद आप ये लिख सकते थे, आई होप फॉर क्विक एंड बेटर रिस्पॉन्स, थैंकिंग यू. ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर. एंड देन आफ्टर सिंसरली योर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सिंसरली योर, अगर आप ऐसे लिखते, ये दो तरीके से लिख सकते हैं, योर्स सिंसरली. ओके, योर्स सिंसरली आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा योर्स लिखते दौरान. पर अगर आप सिंसरली को आगे कर देंगे तो यहाँ केवल योर लिखना पड़ेगा, योर्स नहीं. ठीक है, इस तरीके से सिंसरली योर महेश, President RWA, like this. This is your signature, and this is also the end of this letter. Hope guys you like this, video. Definitely would be very fruitful, very beneficial for you. How did you feel this video? Please do comment me. Okay, whether it's whether you are having any problem or anything. Okay, and do one thing, practice exercises and send me in the apps homework section. Okay, and inform me also so that I can check and
check your homework over there. Okay, this is what all about for today's lecture. प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन प्रेस करें सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इसके साथ साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ गुड डे.